Praise the Lord, brothers and sisters. भाइयों बहनों, परमेश्वर की स्तुति हो। Few days before, I am traveling in the coming back from office in the train, local train. कुछ दिन पहले मेरे ऑफिस से मैं लोकल ट्रेन से वापस आ रहा था। So train was, you all aware that local train is very jam packed. हम सभी जानते हैं कि जो लोकल ट्रेन होती है बहुत गर्दी होती है उसमें। So I was standing at the door and very tightly packed. All are standing very tightly. और मैं डोर पे ही खड़ा था और बहुत ज़्यादा गर्दी था, पूरा पैक था। So one person standing on the behind said, brother, भैया आप next, you're stepping down at the next stop. और पीछे जो एक व्यक्ति जो खड़े थे उन्होंने मुझसे कहा, क्या भैया आप अगले स्टॉप पर उतरेंगे? And I said no. मैंने कहा नहीं। That brother have said, okay, then you come to my place. तो वो भाई ने मुझसे कहा कि मैं जहाँ खड़ा हूँ वहाँ पे आप आ जाइए। So when I turned back, he was, because all knows the reason, very rainy season it's going on. So he is wet and his body is so stinky. और मैंने पीछे मुड़ के देखा क्योंकि बारिश वगैरह हो रहा था तो वो पूरी तरह भीगे हुए थे और बास आ रहा था। So anyway, I have to turn like this, then I have to move to this place only. फिर भी मुझे वही जगह पे मुड़ के जाना ही था। So somehow managed to get into place. फिर मैंने कैसे भी करके मैं वहाँ चला गया। So this brother, this person have come in front of me right now. अब ये जो भाई है वो मेरे सामने आ गया। So now it looked like he drunk it and his body is full stinking. The whole thing I have to smell his stinky smell. ऐसा लग रहा था कि उन्होंने पी रखी थी और पूरा बदबू जो है वो मुझे आ रहा था। So he is not stepped down at the next station. After 3-4 stations only he stepped down. और ऐसा हुआ कि वो अगले स्टेशन पर नहीं उतरे, 3-4 स्टेशन के बाद ही वो उतरे। So suppose a brother or sister came into this church like that. मान लीजिए कि कोई भाई या बहन इस कलीसिया में इस तरीके से आते हैं, How much disturbed you will be. तो आप कितने परेशान होंगे। If we are externally we are so sensitive of this one, how much more we should be sensitive to inside. तो यदि बाहरी रूप से हम इतने संवेदनशील होते हैं तो हमें अंदरूनी रूप से कितना संवेदनशील होना चाहिए। I want to turn to a verse, everybody familiar of this one, 1 Thessalonians chapter 4 verse 7. मैं एक वचन में जाना चाहता हूँ, सभी ये वचन जानते होंगे। पहला तस्सलुनीकियों 4 अध्याय उसका 7वां वचन। For God did not call us to be impure but to live a holy life. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। And this chapter is starting like this. और इस अध्याय की शुरुआत इस प्रकार होती है। Dear brothers and sisters, we instruct you to how to live in order to please God. निदान है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु यीशु में समझ के कि जैसे तुम्हें परमेश्वर में कैसे जीना चलना है वो हम बताते हैं। Now we ask and urge you in the Lord Jesus to do this more and more. Some of the versions is written like that. और फिर वापस लिखा गया है कि हम तुम्हें प्रभु यीशु में समझते हैं कि ये सारी बातें आप और अधिक करते जाओ। And similar passage we can read in 1 Peter also. यही वचन जो है हम पहले पत्रस में भी पढ़ सकते हैं। And quoting Leviticus chapter 11:44. मैं लेवीतियों Chapter 11:44. 11वां अध्याय उसका 44 वचन। They actually 1 Peter is mentioning from the Leviticus chapter 11:44. पहले पत्रस में लेविया व्यवस्था 11 अध्याय उसका 44 ही कहा गया है। For I am the Lord your God, consecrate yourself therefore and be holy, for I am holy. And again it is repeating verse 45. I am the Lord who brought you out of Egypt to be a God, therefore be holy because I am holy. क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस प्रकार के रेंगने वाले, it's 44 right? 44 and 45. हाँ, 45. रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं ये यहोवा हूँ जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। And here also this time 2 times holiness, to be holy like God. यहाँ पे भी 2 बार जो है परमेश्वर के समान पवित्र होने के बारे में कहा गया है। I experience a person's external attitude, but God sees the internal attitude. मैंने मनुष्य की जो बाहरी रूप का जो अनुभव है वो लिया है, परंतु परमेश्वर अपने अंदरूनी जो स्वभाव है, हमारी जो मनोवृत्ति है वो देखता है। A few days ago I shared an example of getting prepared for a marriage.
कुछ दिन पहले मैंने एक उदाहरण दिया था विवाह के लिए हम कैसे तैयारी करते हैं So उसके I बारे shared, में। oh God, fine, getting dressed up and getting beautiful of their face and all those things. मैंने तब बताया था कि कैसे हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं, हमारा चेहरा वगैरह जो है बहुत अच्छे से रखते हैं। Then Johnny brother come and said that, okay, fine, one of the young couple saying that is because of we want to take good photographs, that's why I dressed up nicely. जब भाई जॉनतन यहाँ पे आए तो किसी ने कहा कि क्योंकि हम अच्छी फोटोग्राफी खींचना चाहते हैं इसलिए अच्छे से कपड़ा वगैरह पहन के अच्छे से तैयार होते हैं। But for me, when I heard that one, I was yeah, thinking about that one. जब मैंने उसके बारे में सुना तो मैं उसके बारे में सोच रहा था। God is telling me that, okay, are you coming to church like that to get a good selfie or good picture of your holiness to show to others? तो मैं ये सोच रहा था कि क्या तुम कलीसिया में इसलिए आते हो ताकि तुम्हारा जो एक अच्छा चित्र जो है या अच्छा पिक्चर जो है लोगों को दिखाई दे सके, उसका चित्र निकाल पाएं। Like externally, I am acting very politely. I am speaking right now, standing here and speaking very politely. But inside, what Johnny brother have shown now, inside the bag, you are stingy and you cannot expose to others. और बाहरी रूप से मैं बहुत ही अच्छे से बात करता हूँ, बहुत ही कोमल दिखता हूँ, परंतु जैसे भाई जॉनी ब्रदर ने कहा कि हम जो है अंदरूनी रूप से जो है इतने बदबू मारते हैं कि इसको किसी को दिखा नहीं सकते। We can make it externally beautiful, we can speak nicely, but inside how it is, that is God looks into. हम बाहरी रूप से इसे सुंदर बना सकते हैं, दिखा सकते हैं, परंतु हम अंदरूनी रूप से कैसे हैं वही परमेश्वर देखता है। Recently when I heard about Victor Brothers, one of the messages given to London CFC. कुछ दिन पहले अभी हाल ही में मैंने भाई विक्टर की एक संदेश सुनी जो कि लंदन की सीएफसी में दिया गया था। He was telling that Matthew 5, 6, 7 are all theories. वो कह रहे थे कि मत्ती 5, 6 सब अध्याय जो है वो सिर्फ सिद्धांतें हैं। Later on, God will take us to lab, practical lab. उसके बाद जो है परमेश्वर हमें जो व्यवहारिक लैब की तरफ ले जाते हैं। I want to turn to a lab question God is going to give to us. और मैं यहाँ पे एक लैब ऐसा खोलना चाहती हूँ जो परमेश्वर हमें देना चाहते हैं। Romans chapter 12 verse 14. रोमियो 12वां अध्याय उसका 14 वचन। Romans chapter 12 verse 14. रोमियो 12 उसका 14। Bless those who persecute you and bless and do not curse. अपने सताने वालों को आशीष दे, आशीष दो, श्राप न दो। And this is one of the area God will take all of us to a lab so that He will check whether he is or she is passing this lab test also. और ये एक जगह है जहाँ पे हम सभियों को परमेश्वर जो है वो लैब में लेके जाएंगे और परखेंगे कि क्या ये व्यक्ति जो है यहाँ से पास होकर आगे जाता है कि नहीं। All, especially college, studied in college and know this, we should have a pass mark in the theory and we should have a pass mark in the lab also. जो भी कॉलेज वगैरह पढ़ते हैं वे जानते हैं कि हम सभी को जो है थियरी जो पढ़ाई है थियरी में भी पास मार्क चाहिए होती है और जो लैब की एक्टिविटी होती है उसमें भी पास मार्क चाहिए होती है। Here also the Romans chapter 12 start like this. Therefore I urge you brothers and sisters in view of God's mercy. और यहाँ पे भी रोमियो 12वें अध्याय की शुरुआत इस तरीके से होती है, इसलिए भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। And he is continuing in this chapter 12. और फिर वो अपने 12वें अध्याय को आगे बढ़ाते हैं। Therefore it is our responsibility to ensure that this lab test also I will pass the test and face the God. तो यही हमारी भी जिम्मेदारी होती है कि हमें ये देखना है कि ये जो लैब टेस्ट है ये परखने की अवस्था हम जो है पार कर परमेश्वर के पास आगे जाएं। Persecution came from our relatives or working environment or from close friends or government bodies, even from our life partner also. जो सतावटें होती हैं हो सकता है कि हमारे जो आसपास हमारे जो काम करने वाली जगह पर या तो फिर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के सरकार के द्वारा या तो फिर हमारे जो घर के अंदर जो हमारे जो जीवन साथी है उनके द्वारा भी ये परेशानियां आ सकती हैं। That's why it is written in Hebrews 12 verse 14 and 15 like this. इसलिए इब्रानियों 12वां अध्याय 14 और 15 वचन में ऐसा कहा गया है। Take every effort to live in peace with everyone and to be holy. सबसे मेल मिलाप रखने और उस पवित्रता के खोज ही।
Try in Amplified version, it is written like this, Hebrews chapter 12, verse 14. Try to stay out of all quarrels and seek to live a clean and holy life. और जो एम्पलीफाइड वर्शन है उसके भाषांतर में इस प्रकार लिखा हुआ है कि सारे जो झगड़े होते हैं उससे बाहर रहो और अपने आप को पवित्र और शुद्ध रखने का जीवन जीने की कोशिश करो. And it is continuous, no one short fall of grace, that no bitter root grows up to cause trouble and defile many. और आगे कहा गया ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे. And it clearly specifies as from our heart no bitter root grows up. और यहाँ पे साफ रूप से लिखा हुआ है कि हमारे हृदय से कोई भी कड़वी जड़ फूट ना आए. And it's this verse is very practical lab guidance for us. ये जो है एक व्यवहारिक लैब का एक अगुवाई है हमारे लिए. We cannot avoid the persecutions from others. दूसरे लोगों से जो सतावटें हमें होती है उसे हम जो है नकार नहीं सकते, उसे छोड़ के भाग नहीं सकते. But our responsibility that okay, the bitter thinking about others or bitter root should grow up. Sorry brother. Bitter attitude towards others should grow up in us. और हमारी जो ऐसी मनोवृत्ति होनी चाहिए कि जो कड़वी जड़ जो हमारे अंदर जो दूसरों के प्रति होती है. When others persecute you, that bitter root automatically will come. So, अरे why he is doing like that? But it is our response to make sure that this bitterness will not come more and more in us. जब भी कोई परेशानी हमें होती है, दूसरे लोगों के द्वारा सतावट होती है, तो ये जो कड़वी जो मनोवृत्ति है, जो विचार है हमारे अंदर उगेंगे ही, परंतु हमें ये बात का ध्यान रखना है कि वो बात जो हमारे अंदर बढ़े ना, वो बहुत कम होते जाए. Brothers and sisters, can you check yourself? Do you have any bitter experience or bitter attitude towards anybody in this world? भाइयों बहनों, क्या आप अपने आप को परख कर ये देख सकते हैं कि पूरी दुनिया में आपको किसी के प्रति जो है कोई भी कड़वाहट के जो विचार है या तो फिर कोई फूट है उनके लिए अपने मन में है क्या? It can be minor or major also. हो सकता है कि वो छोटी हो या तो भी बड़ी भी हो सकती है. How this can destroy yourself? There is a incident written in the word of God itself. और ये हमारे जीवन को नष्ट कैसे कर सकता है उसके बारे में परमेश्वर के वचन में ही एक घटना लिखी हुई है. And it is written in 2 Samuel chapter 16 and 17. ये लिखा हुआ है दूसरा शमूएल 16 उसके 17 वचन में. And here it is written about a person called Ahithophel. और यहाँ पे अहीतोफेल नाम के एक व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है. Ahithophel is the chief royal counselor of King David. और जो अहीतोफेल जो था वो जो है दाऊद का जो है बहुत ही मुख्य जो है सलाह देने वाला था. And it was mentioned that he is a grandfather of Bathsheba. और यहाँ पे ये भी कहा गया है कि वो बत्शेबा का जो है दादा था. And it is written in the words 2 Samuel chapter 16 verse 23. और दूसरा शमूएल 16 उसके 23 में लिखा हुआ है. And who is Ahithophel? अहीतोफेल कौन है उसके बारे में लिखा Now हुआ in है. those days the counsel that Ahithophel gave was as if one consulted with the word of God, so was to all the counsel of Ahithophel esteemed both by David and by Absalom. 2 Samuel chapter 16 verse 23. दूसरा शमूएल 16वां अध्याय उसका 23 वचन. उन दिनों जो सम्मति अहीतोफेल देता था वो ऐसी होती थी कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूछ लेता हो. अहीतोफेल चाहे दाऊद को चाहे अबशलोम को जो सम्मति देता वह ऐसी ही होती थी. It is not written like he is giving God's advice. It looked like he is giving advice. तो यहाँ पे ऐसा लिखा नहीं कि वो जो है सम्मति दे रहा हो, परंतु यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि ऐसा लग रहा था कि वो ही दे रहा है. So same thing on the basis of the only Psalms 55 verse 12 and 14 written like this. और भजन संगीता 55 उसका 12 और 14 वचन. It is David is writing about Ahithophel. यहाँ पे दाऊद जो है अहीतोफेल के बारे में लिख रहा है. A man like myself, my companion, my close friend, with whom I once enjoyed sweet fellowship at the house of God, as we walked about among the worshippers. Psalm 55 verse 12 and 14. भजन संगीता 55 उसका 12-14. जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसको सह लेता. जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं तो मैं उससे छिप जाता. परंतु वो तो तू ही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था. Yes,
So Ahithophel externally he looks like he's a friend of David and good counsel to David, but inside the heart he is having grudging spirit against or bitter spirit against David. अहीतोफेल भले ही वो दाऊद को जो है सलाह देता था, बाहरी रूप से जो है उसका मित्र दिखाई देता था, उसके भलाई के बारे में सोचने वाला दिखाई देता था, परंतु अंदरूनी रूप से वो उसके प्रति कड़वाहट रखता था. David committed adultery with Bathsheba and later on God forgiven David also. दाऊद ने बत्शेबा के साथ पाप किया, व्यभिचार किया, उसके बाद परमेश्वर ने उसको क्षमा भी किया. But years later Ahithophel in his mind is having the bitterness against David. बहुत सालों के बाद अहीतोफेल के मन में जो है दाऊद के प्रति जो कड़वाहट है वो बनी रही. So his mind was want to kill David. और उसके मन में ये था कि वो दाऊद की हत्या कर दें. That's why we don't read that verse. 2 Samuel chapter 17 begins like this. Ahithophel then advised Absalom to immediately pursue David and kill him. और हम यही पढ़ते दूसरा शमूएल की किताब में कि अहीतोफेल ने अबशलोम को तुरंत बोला कि तुम दाऊद का पीछा करो और उसको मार दो. And this was not just a small battle idea of Ahithophel. और ये जो है एक छोटा सा युद्ध का तरीका है अहीतोफेल का. But what happened is God preserved David. परंतु क्या हुआ कि परमेश्वर ने दाऊद को बचाए रखा, उसको सुरक्षित रखा. And later on when you read that one, chapter 17 verse 14 say that God helped David to win the war. और दूसरा शमूएल 17वें अध्याय के आगे पढ़ते हैं हम कि परमेश्वर ने दाऊद की सहायता की कि वो उस जंग को जीत लें. And now Ahithophel understood, okay fine, now David is going will won the war and he will turn against me. और अहीतोफेल को अब समझ में आया है कि परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा जो है दाऊद आगे बढ़ रहा है, अभी वो मेरे खिलाफ खड़ा होगा. And Ahithophel, how he want to kill David, he turned his son, David's son, Absalom's idea to turn against David. और अहीतोफेल ने क्या योजना बनाई कि उसने जो दाऊद का पुत्र अबशलोम है उसको दाऊद के खिलाफ भड़काया. He tried to change his son against his father. उसने ऐसा किया कि उसने उसके दाऊद के पुत्र को उसी के खिलाफ कर दिया. But God did not allow to happen like that. परंतु परमेश्वर ने ऐसे होने की अनुमति नहीं दी. And what happened to Ahithophel? और फिर अहीतोफेल के क्या हुआ? And 2 Samuel chapter 17 verse 23. दूसरा शमूएल 17 अध्याय उसका 23वां वचन. When Ahithophel saw that this counsel was not followed, he saddled his donkey and went off home to his own city. He set his house in order and hanged himself, and he died and was buried in the tomb of God, father. जब अहीतोफेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गदहे पर काटी कसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो जो आज्ञा देनी थी वह देकर अपने को फांसी लगा ली. Where it started? कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? It's a bitterness against David. दाऊद के खिलाफ एक कड़वाहट से इसकी शुरुआत हुई. Because of the bitterness, even though the God forgiven him, he tried to turn his son against him. और उस कड़वाहट के वजह से भले ही परमेश्वर ने उसको क्षमा कर दिया, फिर भी उसने दाऊद के पुत्र को उसी के खिलाफ भड़काया. At last, what he want to do, he want to kill David. और अंत में वो क्या करना चाहता था? वो दाऊद को मार देना चाहता था. At last, what happened? Ahithophel hanged himself and put to death himself. और आखिरकार क्या हुआ कि अहीतोफेल ने जो है अपने आप ही फांसी ले ली और मर गया. Brothers and sisters, devil's aim is to destroy our life like this. और भाइयों बहनों, शैतान की यही योजना है कि वो हम सभी के जीवन को नष्ट कर दे, बर्बाद कर दे. By putting some bitterness against somebody. ऐसे ही कोई कड़वाहट की बात किसी के प्रति हमारे मन में डालकर. This will spoil most of the family relationship. ये जो बात है अधिकतर जो घरों में जो रिश्ते हैं उसको जो है खराब कर देती हैं. Devil tries to destroy the harmony of love and peace in your family. आपके परिवार में जो है जो खुशी है और जो एकता है उसको नष्ट करने की योजना जो है शैतान रखता है. Even those thoughts he will slowly put in teenagers, youth, so that you think that I am better than not your papa and amma. I am better than you. और ऐसे ही जो विचार है वो जवानों के
के भी, किशोरों के भी मन में डालता है ऐसे विचार कि नहीं, मैं मेरे माता पिता से बेहतर हूँ, उत्तम हूँ। So how the devil will put the bitterness, I will share one of my own experience. और शैतान कैसे इस कड़वाहट को अपने मन में डालता है, उसका एक उदाहरण मैं अपने आप से देता हूँ। So before coming to save, that means when you get married, immediately we all show to our partner that you are better than everybody. और जब हमारा विवाह होता है तो हमारे जीवन साथी को हम दिखाते हैं कि आप जो है सबसे उत्तम हैं। So I was a choir master of maybe 50 people, 100 people. I conducted choirs, Christian song concert. और मैं एक जो है क्वायर चलाने वाला और जो 100-150 लोगों का जो क्वायर का टीम होता है वो संभालता चलाता था मसीही टीम को। But later on I understood that those concerts are like deception. But what I'm trying to say, the bitterness God devil will put in our mind. I want to share that one. और बाद में मुझे पता चला कि वो जो संगीत वगैरह जो है वो एक भटकाने वाली चीज़ है, पर मैं शैतान जो कड़वाहट हमारे मन में डालता है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता So हूँ। after completing the concert, I will come to my wife. और वो जो कॉन्सर्ट होता है वो खत्म होने के बाद मैं अपनी पत्नी के पास आता So I will ask Bini, how was the concert? और मैं उनसे पूछता कि बिनीता कंसर्ट कैसा था। The Bini will say, reply, okay fine, you are singing for the Lord. Why you are asking me whether you are sang nicely or not? और वो मुझे ऐसी जवाब देती थी कि तुम तो परमेश्वर के लिए गा रहे हो, फिर मुझे क्यों पूछ रहे हो कि अच्छा था कि नहीं। Then my bitterness, अरे what type of lady I married यार? फिर मेरे मन में ऐसा आता था कि कैसी बीवी से मैंने शादी की है। Bitterness started. वैसे ही कड़वाहट शुरू हो गई। I got transferred to Hyderabad. फिर परमेश्वर ने मुझे मेरी जो तबादला है हैदराबाद में की। So when I came to Hyderabad, we are having Debbie was almost 3 months old. जब हम हैदराबाद में आए तो डेबी जो थी 3 महीने की थी। So I will go to office at 7:30 and come back at night only. और मैं 7:30 बजे ऑफिस चला जाता और रात को ही वापस The लौटता। whole day my Bini was taking care of all the children. और पूरे दिन बिनी जो थी वो मेरे बच्चों को संभाल रही थी। And God helped us to understand CFC truth, and 2015 we started coming to CFC. और परमेश्वर ने हमारी सहायता की कि जो परमेश्वर के सत्य है उसे हमें जाने, और 2015 से हम CFC में आने लगे। And at the time my Deborah was almost 2.5 years, and Donnie is having 5 years, and David is having almost 7-8 years old. तब दबोरा जो है 2.5 साल की थी और डैनी जो था वो 5 साल का था। And Danny, elder one, is 8 years old. और जो बड़ा था वो 8 साल का था। But my fleshly desire, I should reach church at least 15 to 20 minutes before starting. और मेरी ये इच्छा थी कि मैं चर्च शुरू होने से पहले 10-15 मिनट मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ। So I will tell everybody, or get it ready before 15 minutes. I have to reach the church. और मैं सभी को ये कहता है कि जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, 15 मिनट से पहले कलीसिया पहुँचना ही है। I not even bothered about my sister, like okay, she have to pack the food, dress up everybody. I will go and ready and keep it car started ready when the sister is coming down. मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मेरी पत्नी जो है बच्चों को तैयार कर रही है, खाना बना रही है, सब कुछ तैयार कर रही है। मैं ये सब कुछ देखता ही नहीं, इसकी परवाह नहीं करता। मैं गाड़ी में बैठ जाता और मैं कहते रहता, मैं इंतजार करता कब ये लोग आएंगे। Most of the time my Bini and kids will come on time. और अधिकतर समय ऐसा होता था कि बच्चे और बिनी जो है समय पर ही आ जाते थे। Very few days, sometimes will miss out. और कुछ दिन ऐसे होते थे कि थोड़ा सा देरी हो जाती थी। Devil started working. फिर शैतान काम करने लगता। मेरे को I'm in CFC, so I cannot express my anger. Or internally my bitterness is against my sister is going on. क्योंकि मैं CFC में हूँ तो मैं बाहरी रूप से अपना गुस्सा नहीं दिखा सकता, परंतु अंदरूनी रूप से जो गुस्सा है बिनी के प्रति मेरे मन में रहता So I है। will ride my car very fast to reach the church 15 to 20 minutes early. तो मैं क्या करता कि अपनी गाड़ी को बहुत तेजी से भगाता ताकि मैं कलीसिया में 10-15 मिनट पहुंच ही जाऊं कैसे भी। So the whole, even though I reached 15-20 minutes, the whole day I'm thinking about I reached church late, I cannot even worship, I cannot hear the word of God. भले ही मैं 15 मिनट पहले पहुंच भी जाता हूँ, फिर भी मैं यही सोचते रहता हूँ कि मुझे देरी हो गई, तो मैं वैसे सोचते बराबर आराधना भी नहीं कर पाता। And brothers and sisters, other families coming in car, they will say, okay, brother, you are late today, that's why you are going faster. Because I'm overtaking every car and going faster. और बाकी जो भाई बहन आते कार से कहते हैं कि भाई आप लेट आए थे इसलिए आप बहुत जल्दी आगे तेजी से चला रहे हो। But inside me, the bitterness against her is that day, whole day, I cannot worship anything. और परंतु मेरे अंदर वो जो कड़वाहट है उसके प्रति होती और पूरा दिन मैं बिल्कुल आराधना ही नहीं कर पाता। Why I shared this one? Because the devil will waiting for a moment to have the bitterness inside you so that he can enter your relationship. और मैंने ये साझा क्यों किया कि शैतान जो है ये ताक में रहता है कि कब वो आपके अंदर वो कड़वाहट को देखे और आपके जो रिश्ता है, आपके जो पारिवारिक रिश्ता है उसके अंदर कैसे वो कदम रख देता है। Because of that small bitterness, I cannot restore the relationship with a father or cannot do the fellowship with a father.
and other brothers and sisters also. उस कड़वाहट के कारण, वो छोटी सी कड़वाहट के कारण मैं परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाता और दूसरे जो भाई बहन है उनके साथ बराबर संगति नहीं कर पाता। And more than that, I am missing the fellowship with the greatest helper God given into my life. उससे भी कहीं बड़ी बात ये है कि परमेश्वर ने जो सबसे बड़ा सहायक मुझे दिया है उसके साथ भी मेरी संगति नहीं हो पाती। I prayed a lot. मैंने बहुत प्रार्थना की, God helped to overcome that bitterness against my sister. परमेश्वर ने मेरी सहायता की कि वो जो कड़वाहट है मेरे जो पत्नी की प्रति थी वो मैं उसके ऊपर मैं जय पा लूं। In this world, many young brothers and young people don't want to marry और इस दुनिया में बहुत सारे जो जवान लोग हैं वो शादी नहीं करना चाहते हैं, because they're saying that I don't want to embrace or chain with in this whatever struggles in the family life. क्योंकि वो ये सोचते हैं और कहते हैं कि मैं बदलना नहीं चाहता, जो भी संघर्ष जो पारिवारिक जीवन में आते हैं वो मैं नहीं सहना I want चाहता, to stay alone. मैं इसलिए अकेला ही रहना चाहता I हूँ। don't want to take the burden of a family. मेरा परिवार का जो भार है, बोझ है, वो मैं नहीं लेना चाहता। Brothers and sisters, when other friends of you selling that, then you have to remind that they are declaring that I cannot forgive others. और जब वो भाई बहनों, जब वो ऐसे आपके दोस्त लोग ऐसे कहते हैं तो वो पूरी घोषणा करते दुनिया को कि I cannot forgive कि others. मैं दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता, I cannot serve others. मैं दूसरों की सेवा नहीं कर सकता। During the time of our family relation, we always tell like this. हमारे पारिवारिक रिश्ते के संबंध में हम हमेशा ऐसा कहते During हैं। the marriage, you dressed up was so handsome and so beautiful. शादी के समय पर आप जो है बहुत ही सुंदर दिखने जैसा जो है तैयार होके आते हैं, After the marriage, only I really seen your picture. पर शादी के बाद ही सच में आप कैसे दिखते हो वो देख पाता हूँ मैं। But I want to correct that sentence. पर वो जो वाक्य है उसको मैं सुधारना चाहता It हूँ। is not the imperfections of your partner. आपका जो जीवन साथी है उसके जो असिद्ध बातें वो नहीं, It is the unChristlikeness in my life make us to think like that. वो हमारे जीवन में जो मसीह समान नहीं है वो बातें हमें ऐसे सोचने पर मजबूर करती हैं। Because I cannot tolerate that what are happening in my life. क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं सह नहीं पाता। This is a lab test. ये एक लैब की परख होती है। See, you consider this, my wife is persecuting me. आप ऐसे सोचते हैं कि आपकी पत्नी जो है वो परेशान करती है, सताती है। For the time being, think like that. आपके लिए आप सोच लो ऐसा। My husband is persecuting me. या तो फिर मेरा पति है वो मुझे सता रहा है। What should you do? आपको क्या करना है? Bless them. Bless them. उन्हें आशीष देना है। That is a lab test you and us have to carry forward. तो वही एक लैब की परख है जो हम सबको आगे लेके चलना है। Children, teenagers, और जो बच्चे हैं और जो Now किशोर बच्चे हैं, and we are having Evo and small kids sitting here and there. और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे यहाँ वहाँ बैठे हैं। So we know that we all carry them and pamper them and all those things those days. हम जानते हैं कि हम उनको जो है उठाते हैं, उन्हें लाड करते हैं, सब कुछ करते हैं। But when you become bigger and bigger, और जब आप बड़े होते जाते हैं, the parents' tone will change. जो माता पिता के जो स्वर होते हैं वो That बदल जाते हैं, pampering become a beating. और वो जो लाड करना मार में बदल जाता है। So we think that, okay, oh, he don't know anything. She don't know anything. I know everything. और फिर हम सोचते हैं कि उसको कुछ भी नहीं पता, मुझे सब कुछ पता है। He is persecuting me. He cannot understand me. वो सताते हैं, वो मुझे समझ ही नहीं पाते। Johnny brother said, honor your parents. जैसे कि जॉनी भाई ने कहा कि अपने माता पिता का आदर करो। We all heard that Jesus himself was submissive to an imperfect parent. हमने सब ने ये सुना है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं जो असिद्ध माता पिता थे उनके अधीन थे। I quoted about children only. मैंने छोटे बच्चों को ही कहा है यहाँ। But brothers and sisters, you can imagine about your parents and in your in-laws also. पर भाइयों बहनों, आप भी अपने माता पिता, आपकी जो सास ससुर है उनके बारे में भी सोच सकते हैं। You also may be thinking that, okay, fine, he or whatever other person is imperfect, not having education, good for nothing. That means slowly devil is putting the bitterness in your mind. हो सकता है कि आप ये सोचते हो कि सामने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति जो है असिद्ध है, उसकी अच्छी पढ़ाई लिखाई नहीं है, वो सही नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि शैतान आपके अंदर छोटी सी जो कड़वाहट है वो डाल रहा है। You know the story of David also. आप दाऊद की भी कहानी जानते हैं। David was submissive to a father who is emotionally detached from David. दाऊद ऐसे एक पिता के अधीनता में था जो कि भावुक रूप से उससे दाऊद से अलग था। How we can understand that?
हम ये कैसे समझ सकते हैं? One said that David's father is not even care of where he is, what he is eating, whether his dress is proper. David's father is not at all thinking about all those things. दाऊद के पिता जो थे वो बिल्कुल इसके बारे में सोच ही नहीं रहते कि वो बेटा कहाँ है, कैसा खा रहा है, क्या खाया कि नहीं, क्या अच्छा कपड़ा पहना है कि नहीं, उसकी बिल्कुल परवाह ही नहीं थी उसको. He was forgotten or purposely not called David for when Samuel came to his Jesse's house. या तो फिर उसके पिताजी उसको पूरी तरह भूल ही गए, या तो फिर जानबूझ के जब समूएल जो है आता है तो उसको बुलाता ही नहीं है. But what is David's response when father called him? पर जब पिताजी ने दाऊद को पुकारा तब दाऊद का कैसी प्रतिक्रिया हुई? I think that he came rushed back to father's. Father, my father is calling. I'll go back. मैं सोचता हूँ कि बहुत ही जल्दी से, जैसे कि मेरे पिताजी ने मुझे बुलाया है करके भाग के आया वो. That's why I think that it's written, David is God's own heart. इसलिए मैं ये सोचता हूँ कि दाऊद जो था परमेश्वर के हृदय के अनुसार था. Children, brothers and sisters, do you have a parents like that, emotionally detached with you or not even care about you, not even bothered about you? Then God is allowing a lab test in your life. भाइयों बहनों, क्या आपके जो माता पिता हैं या ऐसे हैं जो आपके बारे में बिल्कुल परवाह नहीं करते, आपसे जो है भावनात्मक रूप से बहुत दूर हैं, तो समझ लिए कि परमेश्वर ने आपके लिए ऐसा एक लैब का परखने की अवस्था रखा है इसमें. Or in the lab test, slowly the bitterness is coming to your mind and you would want to kill her in his mind. That type of attitude is coming to them. क्या ये जो लैब की परख आपकी हो रही है, वहाँ पे जो कड़वाहट उनके प्रति आपके मन में है, तो क्या आपके मन में ऐसा आता है कि अंदरून रूप से उन्हें मार देने की जो विचार है वैसे आते हैं? We all know that Graham Staines incident. हम ग्राहम स्टेन्स का जो घटना है वो हम सब जानते हैं. Almost 35 years he and his family was there in Odisha. ओडिशा में वो उनके फैमिली 35 वर्षों तक जीवित थे. And in 1999 we all know that a mob surrounded them and killed Graham Staines and his two sons. और 1999 में हम सब जानते हैं कि सारे जो गुंडे हैं वो उनको घेर लेते हैं और ग्राहम स्टेन उनके दो बेटों को मार देते हैं. And normally as a wife she should feel that okay fine, why it has happened, so I will not forgive them. एक साधारण पत्नी होती तो ऐसी सोचती कि ऐसा सब कुछ क्यों हुआ, ऐसा हुआ है तो मैं उन्हें माफ नहीं करूंगी. I will not stay in India and go back to my way because these people are hating me. So she is all the way right as in a worldly manner. एक सांसारिक रूप से देखा जाए अगर वो ये कहें कि यहाँ पे मैं भारत में रहूंगी नहीं, मैं अपने देश में वापस चली जाऊंगी, ये सब अगर वो सोचती है कि सांसारिक रूप से तो सही बात है वो. But she continued her ministry in India. परंतु उसने अपनी सेवकाई भारत में जारी रखा. She received the Padma Shri from the government of India. और जो भारत का सरकार है वहाँ से उन्हें पद्मश्री भी मिली. But during that talk she said like that, I have only one message for the people of India, love one another and forgive. और उन्होंने अपने जो संदेश है उसमें ये कहा कि मेरे भारत के लोगों को एक ही बात कहना है कि एक दूसरे से प्रेम रखो और दूसरों को क्षमा करो. What Jesus said on the cross, प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर क्या कहा? forgive them, they don't know what they are doing. कि प्रभु उन्हें क्षमा कर दीजिए कि वो नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं. We thought that again, standing among them or to them they said, no, it is looking at me, you sitting here. God said, Lord, Father, he don't know, Joseph don't know what he's doing. हमें ऐसा लगता होगा कि जो क्रूस के पास लोग खड़े थे उन्हें देखकर प्रभु ऐसा कह रहे थे. ऐसा बिल्कुल नहीं, वो मुझे आपको देख के कह रहे थे कि पिताजी नहीं जानते, जोसेफ मैं नहीं जानता कि क्या कर रहे हैं. Compared to Jesus or those missionaries, we are not going through that much persecutions. उनकी तुलना में, प्रभु यीशु मसीह की तुलना में, ये जो मिशनरी की जो तुलना में हम ऐसे सतावट में तो जाते नहीं हैं. When anybody is getting persecuted, the first thing is devil try to put us bitterness. Don't allow to that work it out, grow more and more in your life. और जब भी ऐसे सतावट होती है तो शैतान जो है वो कड़वाहट हमारे मन में डालता ही है, परंतु उसमें ऐसा ना काम करें कि वो जो है आगे बढ़ता जाए वो कड़वाहट. That's why Mark chapter 11, 25 and 26 we read like this. मार्कुस 11, 26 और 27. Mark chapter 11, 25 and 26. मार्कुस 11, 25 और 26. When you stand praying, if you hold anything against anyone, forgive them so that your Father in heaven may forgive your sins.
और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करें। It is very simple English. If you hold anything against anyone, ये बहुत ही सरल रूप से लिखा हुआ है कि यदि तुम किसी की ओर से कुछ विरोध रखते हो, it is not written, okay, if you are having anything against your godly husband or godly wife or godly mother or godly in-laws. It is not written like that. यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि यदि तुम किसी के, जैसे कि तुम्हारे जो ईश्वरीय पति है, पत्नी है, या तो फिर तुम्हारे ईश्वरीय जो भाई बहन है, उनके खिलाफ कुछ कड़वाहट रखते हो, विरोध रखते हो, तो ऐसा नहीं लिखा है। If you hold anything against anyone, यदि तुम्हारे मन में किसी के भी प्रति कोई भी विरोध है, forgive them. तो उन्हें क्षमा कर दो। They can persecute us still more, हो सकता है कि वो हमें अभी और भी सताएं, but forgive them. पर उन्हें क्षमा कर दो। Forgive them. Forget them. उन्हें क्षमा कर दो। Not forget them. Forget the attitudes of them. उनके जो रवैये हैं उसे आप भूल जाओ। That is a God's expectation in us. तो परमेश्वर की हमसे यही अपेक्षा है। Otherwise, the bitterness will go increase, and we will separate it from the Lord, like what happened to Ahithophel. और नहीं तो क्या होगा, ये जो कड़वाहट है हमारे मन में और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगा, और जैसे अहीतोफेल के साथ हुआ वैसे ही हमारे साथ भी होगा। The same attitude can be happen with our relationship with Father also. ऐसे ही जो मनोवृत्ति है हमारे पिता के साथ हमारा रिश्ता है उसमें भी हो सकता है। That's why Job was a God tested Job. We all know that. हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अय्यूब को परखा। In Job chapter 7:11, it is Job initially started blaming the God. और अय्यूब 7:11 में हम देखते हैं शुरुआती रूप से अय्यूब ने जो है परमेश्वर पर दोष लगाना शुरू किया। And it is written like his bitterness of my soul. It is written like that, bitterness of my soul. और यहाँ पे ऐसे लिखा है कि अपने जीव की कड़वाहट के कारण। But when you come to the chapter 9, जब 9वें अध्याय की ओर आते हैं, sorry 10, Job chapter 10, अय्यूब उसके 10वें अध्याय की ओर आते हैं, when 8 from 8 to 12, 8 से लेकर 12 तक, your hands shaped me, और तुम्हारे हाथ ने मुझे बचाया, you made me, आपने मुझे बनाया, remember that you molded me like clay. और याद रखिए कि तूने मुझे जो है एक मिट्टी की नाई बनाया। And verse 12, you gave me life and showed me kindness. और तूने मुझे जीवन दी और तूने मुझ पर करुणा दिखाई। And your providence watched over my spirit. और मेरी जो आत्मा है, मेरा जो प्राण है, उस पर तेरा जो आशीष है हमेशा देखता रहा। So what we learn from this, see, whenever anything happen, persecution happen, or anything doing wrong against me, it's normal that instantly you will have feel bad or bitter experience against that person. और ऐसा होना बहुत ही लाजमी है कि जब भी कोई भी सतावट या परेशानी हमें दूसरों से होती है तो अचानक से जो हमारे मन में जो है उनके लिए जो विरोध भावना है उठती है। But when you look upon the God, पर जब आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, what Jesus Christ done for me and you, जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए और आपके लिए किया है, then our soul have to repent. तब हमारे आत्मा को मन फिराना है, पश्चाताप करना है। Because looking at the cross, I am not facing that much persecution. जब मैं क्रूस की ओर देखता हूँ तो देखता हूँ कि उतनी सतावट तो मुझे नहीं हो रही है। That's why Ephesians chapter 4, 30 and 31 says like this. एफिसियों 4, 30 और 31 में से कहा गया है, It is the grudge of that one. Do not grieve the Holy Spirit of God, यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को दुखी ना ठहराओ, with whom you were sealed for the day of redemption. जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। It start with like get rid of all bitterness. और यहाँ पे शुरुआत ऐसी होती है कि जितनी भी कड़वाहट है उसे दूर हो जाओ। Hope everybody remember this verse Abu uncle have shared in the camp also. कैंप में जो अबू अंकल ने जो है ये जो वचन है वो बांटा था। So it start with get rid of all bitterness. और इससे शुरुआत कीजिए कि जितनी भी कड़वाहट है उसके छुटकारा पा लें आप। And in 1 Thessalonians chapter 5:19 says like this. पहला तस्सलोनियों 5 उसका 19 ऐसा कहता है, Do not quench the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को ना बुझाओ। And in Hebrews 3 verse 8. इब्रानियों 3 उसके 8 में कहा है, Do not oppose the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के विरोध में ना खड़े हो। There is written maybe some version, do not harden your hearts. और कुछ भाषांतर में ऐसा भी लिखा होगा कि अपने मन को कठोर ना करो। And Hebrews chapter 12 verse 5 and 6, the
short is like, do not despise the Holy Spirit. और इब्रानियों 12 के 5-6 में ऐसे लिखा हुआ है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा को तुच्छ ना जानो। So it will, in our life, the first thing is all will start with bitterness. और हमारे जीवन में सबसे पहली बात ऐसी होती है कि सबकी शुरुआत कड़वाहट से होती So है। it will grieve the Holy Spirit. सबसे पहले वो पवित्र आत्मा को दुखी करता है, It will quench the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा को बुझा देता है। Now we will oppose the Holy Spirit. अब हम पवित्र आत्मा के विरोध खड़े होंगे। When you continue like that, you will despise the Holy Spirit. ऐसे ही अगर आगे आप बढ़ते जाएंगे तो आप पवित्र आत्मा को तुच्छ भी समझने लगेंगे। Brother, can you check our life? भाइयों बहनों, क्या हम अपने जीवन को परख सकते हैं? The same, if you're doing like that, the same attitude we do to our fellow brothers and sisters also. यदि आप ऐसे ही हैं, ऐसी ही मनोवृत्ति है, आप जो है अपने जो संगी जो आपके भाई बहन हैं उनके प्रति भी आपका जो रवैया है ऐसा ही होगा। How can we grieve others? हम दूसरों को कैसे दुखी कर सकते हैं? Instead of encouraging words or building fellowship them more and more, we will try to make distance with them. हम क्या करेंगे कि उनको प्रोत्साहित करने के बजाय उनसे संगति में बढ़ने की बजाय हम उनसे दूर चले जाएंगे। We may speak words that hurt them, even to our life partner also. हम ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे उन्हें चोट पहुंचती हो सकता है कि हमारे जीवन साथी के साथ भी हम ऐसे ही करें। Now, how will you quench the joy of others? अब दूसरों की जो आनंद है आप बुझाएंगे कैसे? By sharing wrong and negative things about them, either to my in-laws or to other brothers and sisters. उनके बारे में नकारात्मक या कुछ गलत शब्द बोलकर, या तो फिर दूसरे भाई बहनों को उनके बारे में बोलकर, या तो फिर जो सास ससुर है उनको बोलकर। Brothers and sisters, it can happen in your college life, in your school life, in your workplace also. भाइयों बहनों, ये आपके स्कूल के जीवन में, आपके कॉलेज के जीवन में, आपके घर के जीवन में, आपके जो काम करने वाले क्षेत्र है वहाँ पे भी हो सकता है। Now how will you oppose them? अब आप उनके विरोध में कैसे खड़े होंगे? I don't need you. मुझे आपकी जरूरत है ही नहीं। I don't need any of your help. तुम्हारी कोई भी सहायता की मुझे जरूरत Brothers नहीं and sisters, है। look at in your family life, in your quarrels, we'll say like, I don't need to prepare today, nothing to prepare. I know how to prepare. भाइयों बहनों, आप अपने पारिवारिक जीवन में भी जब भी कोई झगड़ा होता है तो आप ये देख पाते हैं, आप कहेंगे कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ तैयार कर लूंगा। Or I will make sure that I will not talk to any brothers or sisters coming to the church. या तो फिर मैं इस बात को पूरी तरह पक्का कर लूंगा कि ऐसे कोई भाई बहन से मैं बिल्कुल बात भी ना करूं। And deliberately maintaining a distance from that brother or sister. और उस भाई बहन से जानबूझकर दूरी बनाए रखूंगा। That means you are opposing the Holy Spirit. इसका अर्थ यही होता है कि आप पवित्र आत्मा के विरोध में खड़े हैं। Then we despise them. फिर उसके बाद उनको तुच्छ जानते हैं। How we are despising them? कैसे हम तुच्छ जानते हैं? No longer concerned about that brother or sister. उस भाई बहन के बारे में बिल्कुल परवाह ही नहीं है अब। If anything bad happens to the brother or sister or life partner, we will think in our mind, oh, you didn't say that to me, that's why it happened to you. या तो फिर भाई बहन के साथ या जीवन साथी के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो हम अपने मन में सोचते हैं, हाँ तुमने मेरे साथ बुरा किया इसलिए तुम्हारे साथ हो रहा है। Brothers and sisters, do not grieve the Holy Spirit. भाइयों बहनों, पवित्र आत्मा को आप शोकित ना करो। Do not quench the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को बुझाओ नहीं। Do not oppose the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के विरोध में ना खड़े हों। Don't despise the Holy Spirit. पवित्र आत्मा को आप जो है तुच्छ ना समझो। I want to end up with two verses. 2 वचन के साथ मैं समाप्त करूंगा। Hebrews chapter 9 verse 14. इब्रानियों 9 उसका 14। The blood of Christ, who through the eternal Spirit offered himself unblemished to God, cleanse our conscience from the acts that lead to death, so that we may serve the living God. तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। So God is working in us. परमेश्वर हमारे भीतर काम कर रहे हैं। God is ready to work in us. परमेश्वर हमारे अंदर काम करने के लिए तैयार हैं। For what? किस चीज के लिए? 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय 20 और 21। 2 Timothy chapter 2 verse 20 and 21. दूसरा तिमोथी 2 20 और 21। In a large house there are articles not only of gold and silver but also of wood and clay. बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही की पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं। Some are for special purpose and some for common use. कोई कोई आदर के और कोई कोई अनादर के लिए। Those who cleanse themselves from the later will be instruments for special purpose, made holy,
useful to the master, and prepared to do any good work. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। Brothers and sisters, God's calling is the holiness inside us. भाइयों बहनों, परमेश्वर की बुलाहट जो है हमारे अंदर जो शुद्धता है उसकी ओर है। Brothers and sisters, can you examine your life? Do you have any bitter experience against your life partner or your close relatives or your parents or your things? Go home and make sure that you will say sorry to them. भाइयों बहनों, हम अपने आप को परखें और देखें कि हमारे मन में हमारे जीवन साथी के प्रति या तो फिर हमारे रिश्तेदारों के प्रति या हमारे जो माता पिता है कोई भी है उनके प्रति कोई कड़वाहट की बात अगर मौजूद है तो हम घर जाके जो है उन्हें सही करें, उनके मेल मिलाप करें। Maybe they are staying far away. हो सकता है कि वो बहुत दूर रहते हों, Call them. उन्हें बुलाइए आप, Appa, I'm sorry. कहिए मम्मी पापा मुझे माफ़ करें। Tell to your wife or tell to your husband. आपके पत्नी या पति से आप कहिए। Externally, I am beautiful, like Johnny brother have said. Externally, the bag is very perfect. और बाहरी रूप से मैं बहुत सुंदर हूँ, जैसे कि जॉनी भाई ने कहा कि बैग जो है बाहरी रूप से बहुत सुंदर दिखता है। Johnny brother said, okay, what is inside, what is storing inside, that matters for God. परंतु जैसे कि जॉनी भाई ने कहा जो हमारे अंदर जो है जमा हो रहा है उससे परमेश्वर को लेना देना है। No bitterness against anybody. किसी के भी प्रति कोई भी कड़वाहट नहीं, Holy within us. हमारे अंदरूनी रूप से पवित्र हम रहें। Let God help us. तो परमेश्वर हमारी सहायता करेंगे। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो।